Hello everyone. So in this lecture we are going to study about data structures and algorithm. First of all, we have to understand what is data. Data is nothing but it is a set of records that we are going to store in our computer's memory. For example, marks of student can be a type of data, salary of employees is also a kind of data, and on these data we are going to perform some operations. For example, student marks. Suppose a student has obtained some marks in different subjects. Okay, suppose he has scored 50, 55, some 60, 70. These are the marks in different subjects. What operations we can perform on this marks? We can perform addition of this, we can calculate total, we can find the percentage. So I'm just giving an example, like we are storing data and as well as we are performing some operations on this data. And coming to data structure is nothing but it is a way of storing data. And where are we storing this data? In computer's main memory. Okay, in main memory. Okay, way of storing data in computer's main memory so that various operations can be performed on this data. On this data, what we are doing? We are going to perform various operations. Okay, operation can be like data searching, sorting, adding a data, deleting a data, okay, updating a data, retrieving the data. So these are the various operations that we are performing on this data. So whenever we are designing any data structure, the main thing which we have to keep in our mind is the nature of the data, so that the algorithms which we are going to later on perform on this data are efficient. So this thing is clear. Data structure is nothing but it is a way of storing data in computer's main memory so that various operations can be performed on this data later on. And various operations are searching, sorting, adding, deleting, updating, retrieving. These kind of data, these kind of operations are to be performed on the data. So we can conclude that data structure is nothing but it is a logical concept. It is a logical concept that addresses two basic problems. First is how the data will be stored. How the data will be stored. हमारा जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर होगा, ठीक है, उसी के लिए तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज what operations are to be performed on this data. So we can conclude that data structure is nothing but it is a logical concept, or it is a way of storing data in such a manner that addresses two basic problems. First is how the data will be stored, and second is what operations are going to be performed on this data. So if any data structure we are going to design should address these two problems. Okay. Now the question which arises here is, why are we learning about data structure? Why? Okay. So why data structures? Why are we learning data structures? So as we all know, so now the next question which arises is, why are we studying data structure? So इसका importance क्या है? Why data structure? ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम data structure को? आज के टाइम पे हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं. स्मार्टफोन्स में क्या होता है, डिफरेंट एप्स होती हैं आपके पास. फॉर एग्जांपल आपके पास Amazon ऐप है, आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो आप क्या करोगे, उसके सर्च ऑप्शन में जाके आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को टाइप करोगे, ठीक है, और Amazon आपको सर्च रिजल्ट देगा. बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ऐप आपके एंटर्ड कीवर्ड या प्रोडक्ट को एक एक अपने प्रोडक्ट के साथ मैच कराती है या कंपेयर कराती है, ठीक है, मैच करा के आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स देती है, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स आपके पास आते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा
searching. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन का। डेटा सर्चिंग क्या हो रहा है, आपने कोई प्रोडक्ट एंटर किया और वो अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ उसको कंपेयर करके आपको सर्च रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट होगा तो वो आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में आपके रिजल्ट्स दे देगा, विद इन मिली सेकेंड्स दे देगा, ठीक है। और अगर हमारी डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट नहीं है तो आपके जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ये इसका डेटा सर्चिंग एक तरह का एप्लीकेशन है, ठीक है, ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इतना ज्यादा आपका एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। डिजाइनिंग के टाइम पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसकी सर्चिंग, उसमें डेटा इंसर्ट कराना, उसमें उसको डेटा को डिलीट करना, अपडेट करना, रिट्रीव करना सुपर फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अनदर थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज data structure is not a programming language, okay, not a programming language. अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो क्या है डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट, ओके, दैट इज जस्ट अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है इसका वो कौन करेगा? वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके हो सकता है, वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, C++, जावा, ओके। सो डेटा स्ट्रक्चर आपको बस एक कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। आपको किस तरह का डेटा स्टोर करना है और उस पर क्या क्या ऑपरेशंस होने चाहिए आप ये बताएंगे डेटा स्ट्रक्चर में। बाकी जो इम्प्लीमेंट करेगा वो आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होगा, ठीक है। C++, जावा, किसी भी लैंग्वेज में वो हो सकता है आपका। सो नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? ब्रॉडली हम डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपके वो डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आपने ऑलरेडी किसी भी लैंग्वेज में पढ़े होंगे। सपोज सी में आपने पढ़े होंगे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर। ये क्या करते हैं? ये वैल्यूज होल्ड करने के काम आते हैं। सपोज आपको कोई किसी स्टूडेंट के मार्क्स आपको एंटर कराने हैं तो इंट सपोज a इक्वल टू 10, ठीक है। तो इंट क्या है? आपका टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, उसका टाइप क्या है? इंटीजर, और उसमें वैल्यू क्या होल्ड कराई है हमने? a, ठीक है। तो आपके जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है ये सिंगल वैल्यू को होल्ड करने के काम आते हैं, सिंगल वैल्यू, ठीक है। एक वेरिएबल जो कि इंट टाइप का है एक सिंगल वैल्यू को होल्ड कर रहा है, दैट इज 10। नाउ कमिंग टू नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हमने फर्दर क्लासीफाई करा है लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंशियल मैनर में या लीनियर मैनर में, ठीक है। इसमें एडजेसेंसी मेंटेन रहती है, कोई भी दो एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम एरे। एरे इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सपोज एक एरे है ए, ठीक है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर वैल्यू है कोई 10, 20, 30, 40 सपोज। तो इसमें क्या है? आपकी एडजेसेंसी मेंटेन रहेगी। इस एलिमेंट के एडजेसेंट ये है, इस एलिमेंट के एडजेसेंट ये है, इस एलिमेंट के एडजेसेंट ये है, तो इसमें आपकी एडजेसेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। सीक्वेंशियल मैनर में चल रहा है आपका। अदर एग्जांपल्स कैन बी स्टैक्स, क्यू, लिंक लिस्ट, एक्सेट्रा। सेकेंड इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डेटा किस तरह से अरेंज रहता है? रैंडम मैनर में या स्कैटर्ड मैनर में। हर एक एलिमेंट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज एंड ग्राफ्स, ठीक है। ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे एक एलिमेंट हमारा यहाँ पर है, सपोज इसमें 1 वैल्यू है, नेक्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड ये है, इसको और आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो एक एलिमेंट n नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्रीज और ग्रास इसका एग्जाम्पल है, ओके। सो नाउ कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज नथिंग बट इट इज अ स्पेसिफिकेशन or you can say it is a blueprint, okay. Blueprint of what? Of set of data
and associated operations. Okay, it is a specification or blueprint of set of data and their associated operations. और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ठीक है, ब्लूप्रिंट हमारे पास है, अब हमें उसे किसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो हमारा कौन करेगा, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. सो एडीटी विल टेल अस व्हाट टू डू or what is to be done, and data structure will tell us how it is to be done or how to do it. ठीक है, तो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर करेगा, और जो स्पेसिफिकेशन है, जो ब्लूप्रिंट है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें एक स्टैक जो है, स्टैक एक एडीटी है, ठीक है. स्टैक क्या होता है, स्टैक एक ऐसा एडीटी है जिसमें जो लीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से एंटर होंगे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट लास्ट एंटर हुआ वो फर्स्ट आउट होगा. तो स्टैक को हम डीपली बाद में पढ़ेंगे. तो स्टैक में वेरियस ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि पुश मीन्स एंटरिंग एन एलिमेंट और एडिंग एन एलिमेंट टू स्टैक. अनदर ऑपरेशन कैन बी pop means deleting an element from the stack or removing an element from an stack. So ये stack है, stack के अंदर data है, data को हम push pop करा रहे हैं, क्या है, ऑपरेशन है. अब इस ADT को हम implement करेंगे as a data structure. हम इसको data structure 1 suppose हमारा array है, array की तरह भी implement कर सकते हैं, और हम data structure 2 उसको linked list की हेल्प से भी implement कर सकते हैं, ठीक है. नाउ हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमें एरे की तरह उसको इंप्लीमेंट करना है या कब हमें उसको लिंक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट करना है. सपोज एरे की तरह इंप्लीमेंट करते हुए हमें टाइम कम लग रहा है, ठीक है, लेस टाइम कंज्यूम हो रहा है. अगर हम उसको एरे की तरह इंप्लीमेंट, तो हमारा सपोज जो एलिमेंट्स हैं डेटा उसके एरे के अंदर, उनका रिट्रीवल इजी हो जा रहा है, ठीक है, तो टाइम कम लग रहा है. एंड सपोज लिंक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट करते हुए हमारे पास लेस मेमोरी स्पेस कंज्यूम हो रहा है. तो अब इस टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या हम स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं. तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, सपोज हमें टाइम फास्टर चाहिए, फास्टर एग्जीक्यूशन चाहिए, तो हम एरे के साथ जाएंगे. और अगर हमें मेमोरी स्पेस बचानी है तो हम लिंक लिस्ट के साथ जाएंगे. जो बेटर ऑप्शन हमें लगता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वी विल गो विद दैट. ओके, सो